Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tahir and you are watching live HR Consultants Pakistan. आज हमारा फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। रिसेंटली अभी आपने देखा है जैसा कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने ऑडियंस ने देखा है हमारे इंटरनेशनली जो है इवेंट्स हो रहे हैं जिसपे जो है लाइव सेशंस हो रहे हैं जिसपे स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपनी डिटेल्स कंफर्म करें जो भी उनकी क्यूरीज है यूके का ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल हमारा हो रहा है। तो अभी जो हमारा रिसेंटली ये सेशन होने जा रहा है वो यूके पर है और ये बहुत ही आज इंपॉर्टेंट सेशन है। जनरल सेशन होगा, आपकी जो भी क्यूरीज है देखने वालों की तमाम स्टूडेंट्स की वो यहाँ पर हमसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत सी हमें क्यूरीज रिसीव हुई हैं यूके से रिलेटेड, तो आज हम जो है क्यूरीज को क्लियर करेंगे। आज हमारे साथ अवेलेबल हैं हमारे कराची ऑफिस की मैनेजर हैं यूके की मिस साइमा। थैंक यू मिस साइमा, आपने हमें ज्वाइन किया। Assalamu alaikum. Somat Tahir for introducing me to the viewers. थैंक यू। अच्छा मिस, आज का जो हमारा पहला जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूके जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए। डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि हम यूके जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो उनके पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि अब मेरा लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का इंटरेस्ट है यूके का, तो वो उसका सवाल ये होगा कि व्हाई यूके। तो आप इस चीज को ब्रीफ करें, हमारी ऑडियंस सुनना चाह रही है, स्टूडेंट्स सुनना चाह रहे हैं कि व्हाई यूके, क्या है ऐसा यूके में कि हम स्टडी करने यूके में जाएं। Thank you so much for giving me this opportunity कि ताकि हम अपने students से connect रह सके। Why a student should choose UK as a study destination is a very good and important question. Most of the time what happens in our region is the UK education जो system है, खास तौर से O and A level the students, उनका जो एम होता है वो ये होता है कि उन्हें यूके जाना है, बिकॉज उनके माइंड में ये होता है कि हम तो यूके बेस एजुकेशन है, कैम्ब्रिज एजुकेशन है, तो हम तो यूके से पढ़ेंगे। Besides that, they also go and see options for Canada and US. Why a student should pursue a UK when it comes in his mind कि why UK, why not other study destinations? तो यूके के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि यूके हैज द लॉन्गेस्ट एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री इन एजुकेशन। उनका सबसे ज़्यादा they have heritage institutions, universities they have, right? And they have very popular programs available. They have more than 395, more than 400 universities they have. This means that they have very strong academic history, education history. उनकी जो universities हैं, are the most traditional universities, and they have modern universities as well. The programs, the most important thing for a student is UK degrees are very helpful for any student who can really start his career quickly. He wants to start his career quickly. What do I mean by that? It's very important to understand the degrees which are delivered by UK universities are highly flexible and highly professional, and it's very professionally designed and highly regarded by the quality employers, the top-notch organizations, the Big Four. How is that? The school system which UK offers is like year 13 after A-level student is able to finish his degree in quicker time, which is 3 years. That is price effective and time saving as well. The student is able to finish his honors degree, a bachelor's honors degree in 3 years, which further leads him to go for a master's degree that can be done in 1 year. So student is able to finish his whole education journey in 4 years, like 3 + 1. Then after 1 year, he can start his career. So UK is offering flexible duration of the programs, and the programs are designed in a way that really suits for any applicant who is highly seeking his career and just to quick start the career. So UK degrees are highly regarded and been sought. The degrees have been sought after by the employers in the UK. Most important thing I would like to add that in the UK universities there's a trend that in the organization, the companies, they come every year or twice in a year, they sit with the students and they recruit from the campus. So the programs are which are designed by the UK universities
they are professionally designed. So the employers, they understand the programs and they understand from where they have to pick the person, the applicant, and the you know, for the career employment. So universities also, they help the student to build their CV. They help, they tune them, they prepare them for the interviews and how to, you know, sit in the interview and to win the interview to grab the position in the UK. So this is very important thing which is students should understand about the UK education. So the important factor was price effective. It's, of course, it is a time saving and price saving as well. And having all the facilities and rankings. If you see the UK universities are mostly are the top ranked universities, always come in whenever you see the rankings, the universities are coming in the top 10, top 50, top 100 world universities. Yeah. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल है कि अब हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स से एक बच्चा है जिसने फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए जाना है यूके में. बहुत से हमारे पास ऐसी क्यूरीज रिसीव हुई हैं, हो भी रही हैं, स्टूडेंट सवालात हमसे कर रहे हैं कि फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एक बच्चा जाना चाह रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा कि क्या एक मैट्रिक वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है यूके में या नहीं कर सकता. उसके बाद फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या परसेंटेज होनी चाहिए, उसके लिए इन डिटेल थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमारी ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बहुत से ऐसी मैट्रिक की क्यूरीज होती हैं स्टूडेंट्स की आती हैं कि आई भी हमें रिसीव हुई है कि हम मैट्रिक के बाद यूके अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी फाउंडेशन प्रोग्राम में जा सकते हैं, नहीं जा सकते. इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. As I said, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो मेरा ये अपने पहला क्वेश्चन था उससे काफी थोड़ा सा मैच करूंगी इधर एक बात फ्लेक्सिबिलिटी से. UK universities are very flexible. हर तरह का ऑप्शन, हर तरह की चॉइस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अवेलेबल है UK में. काफी कोर्सेज हैं. मैट्रिक स्टूडेंट का क्वेश्चन आपने किया, वेरी इंपॉर्टेंट. मैट्रिक के बाद अक्सर फैमिलीज चाहती है कि उनका बच्चा आगे जो पढ़ाई करे वो उनकी रैंक्ड यूनिवर्सिटी में करे और प्रॉपर स्टडीज उसकी हायर एजुकेशन की तरफ चला जाए. सो मैट्रिक के बाद यस, student can start the foundation program. उसकी usually I mean ये तो जनरल आंसर मैं आपको देने लगी हूँ, बट जो व्यूअर्स इस आंसर को सुन रहे हैं, रिप्लाई को मेरे डिटेल्ड में अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, they can also contact me so I can elaborate them about the entry criteria. But in general, yes, a metric student usually 60% is required. If a metric student is coming in and saying मुझे apply करना है, बाकी if उसके पास 60% नहीं है तो below level पर भी we can see, and as for the exceptional case we can see कि उसका 55 है, 58 आ गया, 60 से less आ गया, तो we can also see. So yes, in metric student can apply, and for that there are particular universities जिन्होंने अपने फाउंडेशन प्रोग्राम्स को मैट्रिक स्टूडेंट के साथ डिजाइन किया हुआ. Those are intensive courses. Foundation programs are available as per their grades, as per the subjects they have taken. University decide करती है कि इनके मैट्रिक में अच्छा, इन्होंने अगर पता चला जी ये तो FA का स्टूडेंट, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, प्रॉब्ली उसका ना हो रहा, बट अगर कोई साइंस एंड कंप्यूटर साइंस ऐसा स्टूडेंट आ रहा है, सो व्हाई नॉट, ही कैन अप्लाई. यस, ठीक है. लेट्स से एक बच्चे ने मैट्रिक की हुई है 2018 में और उसकी परसेंटेज है 50%, तो क्या वो बच्चा एलिजिबल है यूके के लिए या नहीं है? फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए क्या वो जा सकता है या नहीं जा सकता? 50% फ्रेश होना चाहिए, 2020 या 19 में ही होना चाहिए बच्चा मैट्रिक का? वेल, मैट्रिक वाला स्टूडेंट जो है वो ऑफ कोर्स फ्रेश हो तो हम लेंगे. अदरवाइज अगर उसका थोड़ा सा जैसे 6-8 महीने का आ गया है और उसका 1 साल का अभी चलो गैप है और वो उसके पास रीजंस क्लियर है, मतलब ही हैज अ स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई ही वाज अनएबल टू स्टडी. होता है कभी स्टूडेंट पूरा थ्रू आउट एकेडमिक बड़ा अच्छा होता है बच्चा, बट किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाया, मेडिकल रीजन है, कोई और इश्यूज है. सो वहां पर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है. मैट्रिक का जो एक स्टूडेंट है वो फाउंडेशन में चला तो जाएगा, बट सारी यूनिवर्सिटीज उसको नहीं ले रही होंगी. वो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो मैट्रिक के ग्राउंड्स पे ले रही होती हैं, और मोस्टली मैट्रिक का स्टूडेंट 60% के साथ जा रहा होता है विद लेस. एज आई सेड कि अगर वो थ्रू आउट एकेडमिकली ठीक है, उसके कुछ खास सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ्स में अगर उसका अच्छा मार्क्स आ रहा है, 60s में आ रहा है, तो उसको देखा जा सकता है. बट मिनिमम मैट्रिक स्टूडेंट शुड बी हैविंग 60% with very less gaps.
वरना इट्स नॉट दैट बिग डील, उसका भी उसको भी एडजस्ट करते हैं, उसको भी यूनिवर्सिटीज देखती हैं, इंटरव्यू भी हो सकता है उसका इन एडिशन टू दैट। आइल्स अगर बहुत अच्छा है उसका, फॉर एग्जांपल उसका आइल्स 5.56 तक आ रहा है, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट का, मैट्रिक स्टूडेंट का यूजुअली 5.5 से बहुत अच्छे स्कूल से है वो, तो यस अगर वो एक गवर्नमेंट स्कूल से है और उसके ग्रेड्स भी मतलब बिल्कुल 50 से भी लेस हैं, 55 से भी लेस हैं, तो it will be very difficult for him. But the standard criteria for a matric student is 60%. Just keep it in mind. 60% or close to 60% somewhere in a very good IELTS of at least 5 पे भी हो जाता है, but वो फिर depend करता है कि उसको फिर standalone foundation मिलेगा या उसे joint admission. So it is like mostly it is a standalone. तो वो एक अलग definition है, हम एक बहुत लंबी debate में जा रहे होंगे फिर उसमें कि वो standalone की क्या explanation है और joint admission की क्या explanation है. So अब for metric student ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कोई admission नहीं आ सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन हाँ it really depends. मैं आपको straight away no भी नहीं हम आपको कह सकते कि बिल्कुल जी बिल्कुल कोई choice नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जी आपके पास choice है और बिल्कुल आप आ जाएं हो जाएगा for sure, ऐसा नहीं. So it really depends. अच्छा, अब इसके बाद बताइएगा कि जो इंटर का बच्चा है, लेट्स से एक बच्चे ने इंटर किया हुआ है, तो उसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा सकता है? फर्स्ट, सेकंड, अगर उसकी परसेंटेज मैच नहीं कर रही है डायरेक्ट बैचलर्स के लिए, तो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि वो फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए चला जाए बच्चा? नॉर्मल मिनिमम परसेंटेज फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम क्या है, और उसके बाद बैचलर्स के लिए क्या परसेंटेज चाहिए होती है स्टूडेंट को कि वो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए इंटर के बाद जा सके? देखिए, इंटर जो स्टूडेंट इंटर के बाद आ रहा है जी, और उसके पास मार्क्स हैं, उसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, अभी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वैरी करेगा, ठीक है. ये कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि जी इंटर वाला स्टूडेंट इज फॉर श्योर उसको ओपन है, वो हर किसी तरह की यूनिवर्सिटी, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है और वो इंटर के बाद उसको कोई जरूरत ही नहीं कि वो फाउंडेशन करे. बात ये है कि अगर आप पूछते हैं मुझसे यूं कि इंटरमीडिएट वाला स्टूडेंट उसके जो है ना वो क्या कितने मार्क्स होने चाहिए कि उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाए, in most of the universities there is a leniency for science and engineering students. Science and engineering जो engineering और computer science के हैं, top rank universities में भी कुछ universities ऐसी हैं जो उसको 80% पे, अगर उसको 80% इंटर में आ गए तो वो उसको डायरेक्टली ले लेंगे, उसको कोई फाउंडेशन नहीं करना, उसको कोई पाथवे नहीं लेना है. पाथवे फाउंडेशन के अलावा भी डिप्लोमा का और फर्स्ट ईयर एंट्री का भी पाथवे होता है, तो जरूरी नहीं है वो 80% अगर उसके आगे तो ले लेंगे. थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं जो हमारी दूसरी रैंक्स, अदर वेरी गुड रैंक यूनिवर्सिटीज, थोड़ा सा टॉप नॉच से सेंटर वाली यूनिवर्सिटीज, they are also happy to accept a student is having 65% to 70% for any program, business ho, computer science ho, engineering ho, life sciences ho, in fact. So they are happy to accept a student with minimum 60 to 65% as well. ये हो गई बीच की यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंक है. They are in some of like Queen Mary, University of Sheffield, they are sometimes they're happy to accept student with 80% above. I can name more universities, but here university का नाम लेते रहेंगे तो फिर एक सेशन डिफरेंट हो जाएगा. So मैं सिर्फ इसलिए आपको एक आइडिया दे रही थी. तो 80% वाला बच्चा तो स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, for science and engineering. For some of their other courses as well, they're happy to accept 80% wala student. They see the transcript, the courses, they match and they decide. Okay. अच्छा, फिर आ जाते हैं कि 65 to 70% अगर student का marks है तो भी there are some universities जिसको ले रही for other courses like business and all. दूसरा बच्चा आ जाता है कि जिसको फाउंडेशन करना पड़ जाए, वो कौन सा स्टूडेंट है, राइट? यही क्वेश्चन था ताहिर, इफ आई एम नॉट मिसिंग. बिल्कुल फाउंडेशन, क्योंकि मैंने जो ऐसे सवाल किया ना, बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि हमारे पास जो क्यूरियस स्टूडेंट है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में आ रही थी ये चीजें सामने मेरे, कि एक बच्चा है लेट्स से कि 60% के बाद वो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा सकता है, ठीक है, और 60% से लेस क्या वो फाउंडेशन के लिए जा सकता है? इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि अगर मेरे पास क्यूरी आई है 60% स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो क्या वो एलिजिबल है डायरेक्ट बैचलर्स के लिए? लेट्स से एक बच्चे के अगर वो नहीं जा रहा तो क्या वो फाउंडेशन प्रोग्राम में 60 लेस से जा सकता है? इस चीज को क्लियर करने ताकि पहले मैं आपको बताती हूँ फाउंडेशन, पहले मैं आपको फाउंडेशन एक्सप्लेन करते कि मेरे व्यूअर्स को भी कुछ मिक्स इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड हो जाए.
जब स्टूडेंट का जब उसका स्टूडेंट का मार्क आ गया, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन की एंट्री क्या होती है, फाउंडेशन प्रोग्राम की जो एंट्री होती है वो डी ग्रेड से भी एक्सेप्टेबल है, डी ग्रेड वाला स्टूडेंट भी फाउंडेशन से स्टार्ट कर सकता है. Again, it really depends upon the university's own entry criteria. So we have opportunity, D grade wala student, C grade wala student, B grade wala student foundation program करता है. कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जब स्टूडेंट का उसी स्टूडेंट का 55% या 60% इंटर में मार्क्स आ गए हैं, तो उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी अपना फाउंडेशन स्किप करके अपने फर्स्ट ईयर में ले लेती है. उसको भी पाथवे ही कहते हैं. It's international year 1, international first year. That leads to second year of the bachelor's, right? So there are two pathways. One is foundation, the other one is the international diploma कह लें, international year 1 कह लें, international first year कह लें. Understanding के लिए आपको ये कुछ terms है जो use हो रही हैं universities में. So foundation program is fine. सारी universities एक inter student को foundation में happily accept कर लेंगी. अब उनके एक क्वेरी पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की क्या क्वेरीज है. सो ईयर 1 एंट्री इज देयर. इफ अ स्टूडेंट इज हैविंग 55-60%, उसको इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर में भी डाल सकते हैं. ये यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर के बराबर होता है, बट इट इज अ पाथवे प्रोग्राम, नॉट द फर्स्ट ईयर. सिलेक्टेड डिग्रीज होती हैं यूनिवर्सिटीज की जो इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर के लिए पाथवे प्रोवाइड कर रहे होते हैं. दिस इज अदर देन फाउंडेशन. सो एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट को फाउंडेशन में हर यूनिवर्सिटी ले लेगी, बट ये आपकी जो काउंसलर है, आपका जो एजुकेशन कंसल्टेंट है, वो आपको बता पाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या फाउंडेशन आपके केस में स्किप हो सकता है. सो यस, हो रहा होगा तो वी विल लेट यू नो कि यस यू आर फिट टू गो इनटू द फर्स्ट ईयर, नॉट द फाउंडेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट बहुत ही टॉप नॉच वो कहते हैं मुझे जाना है किंग्स, या मुझे क्वीन मैरी, या मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, और मेरे पास तो इंटर है और मेरे इंटर में जो है ना 75% मार्क्स आ गए, तो मैं फाउंडेशन तो नहीं करूंगा. ऐसा वो डिसाइड नहीं करेगा. उसके मुताबिक क्या होगा कि उसको लाजमी इन यूनिवर्सिटीज में आने के लिए उसको फाउंडेशन लेना पड़ेगा. ऐसी यूनिवर्सिटीज के पाथवेज में ईयर 1 नहीं है. ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज के अपने अपने अरेंजमेंट्स होते हैं. यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल भी होता है, स्ट्रिक्ट भी होता है. सो वी ऑलवेज सी एवरीथिंग, व्हाट ग्रेड्स, व्हाट स्टूडेंट का प्रोग्राम इंटरेस्ट क्या है. क्या पता उसका प्रोग्राम का एक ऐसा इंटरेस्ट हो जिसमें फर्स्ट ईयर एंट्री अवेलेबल ही ना है, उसको लाजमी फाउंडेशन से आना है. सो इट वेरीज. Opportunities are available. The foundation can be skipped. Foundation can be taken as well. Sometimes student eligible होता है कि वो ईयर 1 में चला जाए, बट वो अपनी स्ट्रेंथ करने के लिए, अपने एकेडमिक को स्ट्रेंथ करने के लिए वो कहता है कि मुझे लेना है फाउंडेशन प्रोग्राम. ऐसे भी एप्लीकेंट्स हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं foundation is not that bad thing. It is very, very important stage for a student who is coming from international level. पाकिस्तानी लेवल से खास तौर से आ रहा है, उसका एजुकेशन सिस्टम क्या था, वो किस एनवायरनमेंट से आ रहा है. बेशक वो बहुत हाई स्कूल से आ रहा होगा, इंग्लिश मीडियम से आ रहा होगा, प्रोबेबली ब्रिश कैम्ब्रिज सिस्टम से आ रहा होगा, बट अगर वो माइनर भी वो लैक कर रहा है तो वो अंडरस्टैंड करता है कि मुझे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में पढ़ना है, तो मैं हैप्पी हूँ कि मैं फाउंडेशन लूँ. उससे उसको बहुत हेल्प मिलती है. फाउंडेशन को अक्सर लोग समझते हैं कि ये बस एकेडमिक इंग्लिश है, ये मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे इसमें. इट्स नॉट नेसेसरी. फाउंडेशन में जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स होते हैं ये सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइज्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइफ साइंसेज के कोर्स में जा रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंस का डिग्री करना, एलिजिबल नहीं है, फाउंडेशन लेंगे. फाउंडेशन आपको इंग्लिश का एक मॉड्यूल तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, बिकॉज वो जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन में वो आपकी एकेडमिक इंग्लिश को इम्प्रूव करता है. ये वो अंग्रेजी नहीं जो मैं और आप जनरल कॉन्वर्सेशन करते हैं घरों में आपस में, राइट. वो आपको एकेडमिक इंग्लिश वो ट्यून करते हैं आपको आपके एकेडमिक सिलेबस के मुताबिक, और फिर उसमें 4 मॉड्यूल या 3 मॉड्यूल अपने सिलेबस के मुताबिक डिजाइन करते हैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो कहने का मतलब है कि जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं. इनकी डिग्री में प्रोग्रेस करना होता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट बड़ा रेडी होके जाता है. वो इतना रेडी कर देते हैं स्टूडेंट को कि वो आराम से अपनी बैचलर्स डिग्री को एंजॉय करे, उसको प्रेशर ना स्टडीज का. सो फाउंडेशंस आर इम्पोर्टेंट इन दिस वे. बट जब भी स्किप करना होता है स्टूडेंट को, वी ऑलवेज सी एंड चेक
लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। फाउंडेशन स्किप करके ईयर 1 में आ जाए स्टूडेंट, जहां पर फैसिलिटीज हैं, जैसे ग्रुप्स है, जैसे नाविटस है, जैसे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप है, ये क्या कर रहे हैं, ये इंटू है, ये जो ग्रुप्स हैं, और हमारा ब्रूनेल नाविटस का पार्ट, very very good programs for the international year 1. They have very good courses designed for, or even design courses होते हैं, intensive courses होते हैं, that those are very helpful. अगर फाउंडेशन लेना पड़ भी रहा है और अगर बजट्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी एडवाइस है कि फाउंडेशंस लिए जाएं, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए बेस बनाने के लिए। ठीक है, एक चीज मुझे क्लियर कर दी, एक चीज और, बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके होता है कि यार मैं अगर फाउंडेशन में अपना टाइम वेस्ट करूं तो क्या मैं डायरेक्ट बैचलर में आके क्या करूंगा। एक चीज को क्लियर करें, क्या अगर स्टूडेंट फाउंडेशन के बाद लेट्स से 4 ईयर का बैचलर्स है और वो फाउंडेशन के बाद जा रहा है, तो क्या उसको पूरे 4 साल का बैचलर्स करना पड़ेगा या फाउंडेशन की बेस पर उसको कुछ एग्जाम्पशंस मिलेंगी? इस चीज को क्लियर कर दें। एक स्टूडेंट फाउंडेशन के बाद बैचलर्स के लिए जा रहा है, उसको कोई एग्जाम्पशन है या वो जस्ट फाउंडेशन क्लियर करके डायरेक्ट बैचलर के लिए एंट्री कर रहा है, उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं है? ये चीज मैं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया क्वेश्चन करने का। मैं आपको पहले मैं ये बता दूं कि यूके का जो स्टैंडर्ड डिग्री है, ड्यूरेशन है, वो है 3 साल, 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, 3 ईयर प्रोग्राम के लिए जो बच्चा एलिजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन, वो एलिजिबल नहीं है, तो उसको 1 साल का फाउंडेशन करना है। ठीक है, जब वो 1 साल का फाउंडेशन कर रहा है तो 1+3 है, तो 4 इयर्स में वो अपनी डिग्री फिनिश कर रहा है। फाउंडेशन डिग्री का पार्ट नहीं होते, ये आपको अंदाजा है। फाउंडेशंस होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल होते हैं। ठीक है, समटाइम्स ये कोर्सेज मिक्स ऑफर किए जाते हैं, यानी एम्बेडेड फाउंडेशन प्लस डिग्री 4 इयर्स, एक साथ वीजा लेता है स्टूडेंट, पूरे डिग्री के लिए चला जाता है। कभी भी स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम फाउंडेशन में, तो वो उसकी गलत फहमी एक तरह से। वो ये फाउंडेशन से, मैंने आपको भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में एलैबोरेट किया कि फाउंडेशंस कभी भी टाइम 8 महीने खत्म हो जाता है, 8 महीने में। हाँ, वो ये जरूर कह सकता है कि मैं अपने 15-20 लाख बचाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पैसे बचा रहा है, और लेकिन 8 महीने एक यंग स्टूडेंट के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1-2 साल तो बच्चे यूं ही जाया भी कर देते हैं, तो वो है जाया, वो है वेस्ट। एक स्टूडेंट जो है, वो जब ये अपना फाउंडेशन प्रोग्राम कर रहा है, तो वो उसको अंडरस्टैंडिंग जब उसकी होगी कि ये फाउंडेशन उसके लिए, उसके कैरियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिक्स बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो कभी भी बात ये जहन में नहीं लाएगा। तो ये स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसको चाहिए कि वो मॉड्यूल्स गो थ्रू करे। जब वो फाउंडेशन के मॉड्यूल्स गो थ्रू कर रहा होगा, वो कहेगा नहीं मुझे नया सीखने को मिल रहा है, तो उसके पेरेंट्स भी कहेंगे नहीं मैं अपने बच्चे की बेस बनाऊंगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं फाउंडेशन ना करूं। फाउंडेशन पता नहीं क्यों शायद बहुत बुरा सा लग रहा होता है, शायद कोई नेगेटिव इसकी वाइब है। ऐसा हरगिज नहीं है, ये हमारा और यूनिवर्सिटीज का काम है। लोग समझते हैं कि शायद पैसा कमाया जा रहा है फाउंडेशन के थ्रू। नो, अगर आप खुद देखें, आप खुद रिसर्च करें, आप यूनिवर्सिटीज के साइट पे जाएं, उन्होंने बड़े खोल के बताया हुआ है मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्रेस। फाउंडेशन जब बच्चा पढ़ लेता है, उसकी प्रोग्रेशन बहुत, उसकी अपनी जो हेल्थ है ना, एकेडमिक हेल्थ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो उसको कभी भी वेस्ट नहीं है, ये पहली बात। अगर वो स्टिल ये सारी बातें सुनने के बावजूद और इतनी रिसर्च करने के बावजूद वो यही समझ रहा है कि नहीं जी मुझे तो 1 साल बचाने हैं, पैसे भी बचाने, मुझे आई डोंट केयर कि मुझे फाउंडेशन नहीं चाहिए, तो उसको फिर हमारी जो चॉइसेस, अवेलेबल चॉइसेस हैं, नॉट हमारी, इट्स लाइक पेस यूनिवर्सिटीज की जो अवेलेबल चॉइसेस हैं फॉर द इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर, फॉर द डिग्री ईयर, फिर उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो मिल जाएंगी उसको 55% पे, 60% वो जाए और 3 ईयर में डिग्री कंप्लीट करे। इसको ये अंडरस्टैंड करना है हमारे आज के दौर के स्टूडेंट को, आज के दौर के एप्लीकेंट को, कि आप जब ये फाउंडेशन से अपनी बेस बना के आगे जाओगे तो डिग्री आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। आपका स्टार्टअप, आपका कूप अप करना, आपके लेक्चर्स अंडरस्टैंड करना, यू बी गुड टू गो। और बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जब डिग्री हो जाती है तो स्टूडेंट कहता है कि मुझे तो अब मास्टर्स डिग्री तो बहुत ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से करनी है। उस वक्त वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी उस बच्चे को नहीं ले रही होती, बिकॉज उसके 2 या 2 लोअर आए हुए होते हैं। तो वो फिर उस वक्त परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो कहता है मुझे तो UCL ने नहीं लिया, मुझे कैम्ब्रिज ने नहीं लिया, या मुझे फला यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया, रिजेक्ट हो गया मैं फॉर मास्टर्स। तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर, उस वक्त उसको 3 साल बाद समझ आती है बात। बहरहाल फाउंडेशंस इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, अगर बच्चा अंडरस्टैंड करे नहीं मैं
कर सकता हूँ कोप अप। वो टैलेंटेड स्टूडेंट, हर बच्चा टैलेंटेड होता है, इट डजंट मीन, बट ग्रेड वाइज जो बच्चे की कैपेसिटी बहुत अच्छी आ रही है, एकेडमिक कैपेसिटीज में वो बड़ा अच्छा है, तो व्हाई नॉट वो ले ईयर 1, सेव करे अपने पैसे, सेव करे अपना 1 साल पूरा, और फर्स्ट ईयर की ऑप्शन बहुत हैं। तो हमारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, वो अपना नंबर्स मुसलसल कमेंट्स में दे भी रहे होंगे, उनसे फौरी तौर पे कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें, ताहिर साहब से कांटेक्ट करें, हम आपको बता रहे होंगे कि ईयर 1 में अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। तो we are happy in any case, but we always tell a student, every student, every applicant in highly transparent way, so regret ना हो कोई बाद में। Yes, अच्छा, एक क्यूरी क्लियर कीजिएगा कि लेट्स से एक बच्चा इंटर में है और उसका 2 या 3 साल या 1 साल का स्टडी गैप है, तो क्या वो एलिजिबल होगा यूके में स्टडी के लिए या नहीं होगा, या किसी प्रोग्राम के लिए हो सकता है एलिजिबल या नहीं होगा? इस चीज को आप स्टडी गैप जिस स्टूडेंट का है उसका एजुकेशन, सॉरी मैंने पिक नहीं की लाइन आपकी, सॉरी आई डिडंट कैच इट। जो लेट्स से इंटर का बच्चा है, ठीक है, इंटर ओके, इंटर का बच्चा, वो अगर 2 साल के गैप के बाद आ रहा है, 3 साल के गैप के बाद आ रहा है, क्या वो एलिजिबल है यूके के लिए या नहीं है? अगर एलिजिबल है तो किस बेस पर वो आ सकता है यूके में स्टडी के लिए? ताहिर देखिए, गैप्स जो हैं वो हर दफा नेगेटिव नहीं होते। गैप से तब डरे स्टूडेंट जब उसकी एकेडमिक हिस्ट्री या तो वीक हो या वो बिल्कुल ही फारिग था। देखिए, अगर वो मेडिकली प्रॉब्लम थी या उसने कुछ भी नहीं किया और उसने सपोज वो डी ग्रेड लेकर बैठा हुआ है और सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं कहती हूँ वो तब भी अप्लाई कर सकता है, बट वी रियली डोंट एनकरेज। उसको चाहिए कि वो अपनी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान में अच्छे करे पहले, यानी यहाँ तो बैचलर्स करे या इम्प्रूव करे, समझ रहे? लेकिन अगर उसका 2 साल का गैप, not in all the cases this gap 2 year का is a problem, not in all the cases. Suppose उसकी 60% भी चले मार्क्स हैं जो कि एक बेहतर है बी ग्रेड, और उसके गैप में डिप्लोमा कर लिया था या उसने कोई शॉर्ट कोर्सेज कर लिए थे, फिर उसने अपना इंटरेस्ट शो किया कि देखिए मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या मैंने एज असिस्टेंट अकाउंटेंट मैंने ये काम किया, वो उसने किया हुआ भी हो, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही फारिग स्टूडेंट है। उसकी अगर वो अगर जस्टिफाई कर सकता है, अगर वो क्लियर कर सकता है कि उसकी गैप का रीजन क्या था, अगर वो ऐसा स्टूडेंट है जो वीक है, वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो जस्टिफाई कर पाए कि 2 साल का गैप क्यों लेके बैठा हुआ है। हम हर गैप वाले स्टूडेंट को नो नहीं कर रहे होते, हम देख रहे होते हैं तो वो स्टूडेंट के उसकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, वो बात कर सकता है, वो डिस्क्राइब कर सकता है, तो व्हाई नॉट। यूनिवर्सिटीज भी उसको रिजेक्ट नहीं करती है। हाँ, ये जरूर है कि एक गैप वाला स्टूडेंट should apply for very high rank universities, good universities, not like सस्ते के चक्कर में किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो लेंगी भी नहीं। यूके की स्टैंडर्ड एजुकेशन का उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है और वो बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही देख के एडमिशंस दे रहे होते हैं। तो गैप 1 साल का 2 साल का भी आ जाता है, इससे ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। नहीं भी हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं, खुद भी हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आप ना करें, अप्लाई कुछ और कर लें। बट गैप्स हर दफा में बुरे नहीं होते। स्टूडेंट अगर बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला है और वो जेन्युइन रीजन है और वो बात कर सकता है, वो आराम से वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सकता है, यूनिवर्सिटी को कन्विंस कर सकता है, तो व्हाई नॉट, वी विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, बट वेरी गुड फॉर वेरी गुड यूनिवर्सिटी का वीजा इशू। क्योंकि ये बहुत सी ऐसी बहुत अहम क्वेरी थी मेरे पास, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल भी किए थे इस बेस पर, तो इसलिए मैंने क्लियर की। क्योंकि इंटर का जो बच्चा होता है उसके माइंड में एक चल रही होती है चीज कि क्या मैंने 2016 लेट्स से जिससे आपने गाइड किया है, तो उनको डेफिनेटली सुनने वाले हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी ये क्वेरी जो स्पेशल एफएस-C1 है कि क्या स्टडी गैप है वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं बैचलर्स प्रोग्राम में कि क्या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए यूके के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेट्स से क्या सीजीपीए होता है, क्या परसेंटेज चाहिए होती है जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। ये नॉर्मल सीजीपीए भी चल सकता है या एक स्टैंडर्ड एक यूके की यूनिवर्सिटीज का एक सीजीपीए है दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल 2.5 जो सीजीपीए है, इससे लेस जो है वो यूके के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्या ऐसा है या एक नॉर्मल सीजीपीए पर भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है यूके में? इसका बताइएगा। बिल्कुल बता देती हूँ, बहुत शुक्रिया। किसी भी सीजीपीए का स्टूडेंट यूके में अप्लाई कर सकता है, उसका डिग्री पास होना चाहिए, पहली बात।
लेकिन बात यह है कि वो यूके में नहीं, वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उसकी क्राइटेरिया के मुताबिक, सपोज वो कहता है कि मेरे पास तो बस पास है और मुझे मुझे बहुत बस आप टॉप 10 में करा दें, तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? लेकिन इट डजंट मीन अगर उसकी 50% है, 55 जो कि मिनिमम पास होते हैं, अगर वो मिनिमम पास पे भी है तो वो बिल्कुल अप्लाई करेगा। हम उसको बताएंगे कि उसकी कौन सी यूनिवर्सिटीज में पॉसिबल है, कौन सी सीजीपीए की यूनिवर्सिटी वाइज वो रैंक होता है। तो यस, हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं बिलो लेवल जी, 2.2 वाले को भी डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, 2.3, 4, 5 ऑफ कोर्स डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसको ले ले। फिर अगर उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं बन पा रहा है, फॉर एग्जांपल बिल्कुल 2 बिल्कुल पास करके लाया, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, तो और उसको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी चाहिए, तो हम फिर दूसरे नजर में ये देखते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी शायद उसका प्री मास्टर या ग्रेड डिप्लोमा या पैथवे दे रही है, तो फिर मास्टर्स के भी ग्रेड डिप्लोमा प्री मास्टर्स अवेलेबल होते हैं, जो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया है कि जी हम 3.0 पे लेंगे और स्टूडेंट ले आया 2.875, तो वो यूनिवर्सिटी उसको प्री मास्टर्स के थ्रू भी एक्सेप्ट कर लेती हैं कंडीशनली कि प्री मास्टर्स क्लियर करो विद दिस नंबर्स, ये नंबर्स आप ले आते हो, देन वी आर हैप्पी टू एक्सेप्ट यू फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम। तो ये भी प्रोग्राम्स है, तो ऐसी बात नहीं है। उसको फिर ये कि उसको प्रोग्राम थोड़ा सा बढ़ जाता है, अगर बहुत ही वीक स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज वुड like him to do the grad dip pre-master program. But as far as your query was concerned कि 2.5 वाला भी जा सकता है, तो yes, students are allowed, I mean, they can apply, they have opportunities, they have choices of universities who can accept with low percentage, 50, 55, 60 above. That means if student is taking 2 CGPA, then he can apply for UK universities. It's not two, it really depends upon उसकी percentage क्या बना है, वो depend करता है फिर कौन सी universities को ले रही है, it varies university to university criteria। अब 2 GPA तो बहुत ही below है, 2.2 पे थोड़ी सी जी बिल्कुल ऐसा ही है, लाइफलाइन आती है 2.2 से लाइफलाइन आना शुरू होती है, हाँ थोड़ी सांस आ रही है, राइट? 2 है वो तो फेल हो जाना कहीं उसने, वो 1.9 वाले को कौन लेगा, राइट? सो इट्स लाइक exactly we see the academic जो उसका चार्ट होता है यूनिवर्सिटीज का, इक्वलेंसी परसेंटेज इक्वलेंसी, बहुत हाई लम्स का स्टूडेंट है, नस्ट का स्टूडेंट है, एनईडी का स्टूडेंट है, अगर वो ला रहा है 2.2 2.3, तो फिर हम देखेंगे परसेंटेज क्या आई है, 55 या 60 आ रही होती शायद ऐसे बच्चों, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, बट उनका वी ऑलवेज सी दैट ट्रांसक्रिप्ट द बैक साइड पे या उसके फ्रंट पे उसके देखना पड़ेगा उसके परसेंटेज की इक्वलेंसी की, देन वी आस्क यूनिवर्सिटी टू कन्विंस टू कंसिडर that student। नेक्स्ट जो मेरा सवाल है आपसे, sorry Tahir, I was saying that pre-masters की फैसिलिटी आ जाती है फिर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है? अच्छा, एक चीज आपसे मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, जिस तरह बैचलर प्रोग्राम में आपने बताया था, सॉरी इंटर प्रोग्राम में बताया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर स्टडी गैप है स्टूडेंट का, तो आपने बताया जेन्युइन रीजन दे के कर सकता है, तो सेम जो प्रोसीजर है वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए भी है कि अगर लेट से एक बच्चे ने 2010 में किया हुआ बैचलर्स और वो अपना बिजनेस कर रहा था या कोई भी लेट से किसी काम में अपना बिजी था, तो वो क्या 2020 में 2020 में यूके की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है? उसका 10 साल का स्टडी गैप है, तो क्या बैचलर्स वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है किसी यूके यूनिवर्सिटी में इस स्टडी गैप के साथ, या उसको जेन्युइन रीजन ही देना होगा, सेम प्रोसीजर चलेगा? इस चीज पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। इंटर और बैचलर का स्टूडेंट सेम नहीं है। इंटर स्टूडेंट का जो गैप का मामला भी हमने डिस्कस किया, हम डिस्करेज करते हैं अगर स्टूडेंट का वो वीक स्टूडेंट है और वो बात ही नहीं कर पा रहा है, उसकी वो ही इज अ वेरी आई मीन स्टूडेंट हु इज अनेबल टू डिस्क्राइब कि वो क्या करता आ रहा था, उसकी स्पीकिंग पावर ही नहीं है, तो हम उस स्टूडेंट को जो इंटर वाला है उसको डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो इट रियली डिपेंड्स, नंबर 1। नंबर 2 इज कि बैचलर की जो स्टोरी है स्टूडेंट की एकेडमिक, that is different than intermediate student. Bachelor student usually they do give gap in order to get experience and to then repolish their skills and to get specialized degrees, so they do give gaps, 2 साल 3 साल 5 साल, कम केसेस में 10 साल का गैप भी होता है, 10 साल केस वाला बड़ा, बिल्कुल ऐसा होता है बहुत सारा। सॉरी
जी मैंने कहा बिल्कुल स्टडी गैप बहुत से आते हैं, क्यूरीज आ रही होती हैं। जी जी, so bachelor student तो usually they do take in order to gain experience, ताकि जब वो मास्टर्स में जाएं तो they can really enjoy their real life practices, जो experiences उनके हुए हैं during their experience at the time when they were working, they were in their career. So usually when the student is in the middle of his career, तो वो अपना master specialization select करता है, तो उस पे इतने doubts usually नहीं होते, और वो उसकी will he can always go for a specialization. अगर एक student ने bachelor's किया और उसके बाद वो बैंक में चला गया और वो भी कोई भी position पे काम करता रहा और फिर उसने सोचा कि नहीं यार ये मुझे finance और रिस्क मैनेजमेंट में, कि मुझे बैंकिंग एंड इस्लामिक फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करनी है और उसकी नीड है मुझे, तो व्हाई नॉट, उसके 6 साल का हो या 10 साल का एक्सपीरियंस हो, because he is professional person who was not sitting in the home and playing and doing nothing, so he was not idle, he was working, and वो एक बड़ा पैशनेट और अपना कैरियर ओरिएंटेड बंदा है, वो एप्लीकेंट है, तो वो परसू करे। और फर्क बस ये कि when we do the visa filing, when we do the university admissions, we have to present everything to the university, uska proper CV, uska proper experience, उसने elaborate किया होगा, लेटर नहीं मिल रहा उसको experience का, जो कि ऑन जॉब लोगों को एकदम से लेटर नहीं मिल रहा होता, तो अपने CV में बड़े अच्छे से elaborate करे कि उसने क्या experience, उसके JDs क्या है, job descriptions क्या हैं, तो वो उसको CV में अपने डाले और प्रॉपर अपने CV एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जैसे उसको समझाया जा रहा है, हम उसको बता रहे हैं, काउंसलर्स बता रहे हैं, तो वो अपने पेपर्स दे। यूनिवर्सिटी भी ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से एडमिशन देते हैं जो कि qualified in a sense, like they are in practices, and because they become an asset for any any university, because they share their experiences, right? So वो बड़े अच्छे potential students होते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर वही बैचलर स्टूडेंट उसने कुछ करना कराना नहीं है और उसने सिर्फ एक BBA किया किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से और वो ट्यूशंस पढ़ा रहा है जी ऐसा ही है। तो वो कहाँ ले जाएंगे उसको? वो फिर अगर हम एक्सपीरियंस मांगेंगे, सपोज उसके 4 साल का भी एक्सपीरियंस मांगेंगे, तो वो हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो हमारे लिए बड़ा रिस्की है, वो खुद अपने लिए बड़ा रिस्की है, हम बाद में आते हैं, पहले वो खुद आता है, वो खुद कितने रिस्क पे खड़ा है, क्योंकि वो इज अनेबल टू एलैबोरेट, वो फेक प्रेजेंट कर रहा होगा चीजें, तो वी रियली हैव टू सी। मतलब कि आपका कहने का ये मतलब है कि एक ऑथेंटिक होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी फर्म से या किसी कंपनी से उस स्टूडेंट ने जॉब की हुई है, या ऐसा कोई ऐसा ही है। ऑफ कोर्स उसको प्रॉपर्ली वो इंटैक्ट था, वो काम कर रहा है, वो फॉर एग्जांपल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ऑडिट फर्म्स में इंटर्नशिप्स कर रहे हैं ACCA करने के बाद या अपने BCom या MCom करने के बाद, दे डूइंग वर्क, दे वर्किंग, दे गेनिंग एक्सपीरियंस, वो 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके और फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इससे रिलेटेड कोर्सेज का, तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन थे, वेरी हेल्दी कैंडिडेट्स for us, for universities and for themselves, they are able to apply, और हमें बहुत we really encourage those applicants to apply. Yes. ठीक है, एक चीज और बताइएगा, 2 year bachelor's, let's say स्टूडेंट ने किया हुआ BA, BCom, BSc, 2 year bachelor's, क्या अप्लाई कर सकता है यूके में स्टडी के लिए या नहीं कर सकता? 2 year bachelor's कर सकता है या सिर्फ और सिर्फ 4 year bachelor's होना चाहिए यूके के लिए? इसको क्लियर कीजिए। डायरेक्ट एंट्री के लिए यूके में, मास्टर्स की डायरेक्ट एंट्री के लिए उसको लाजमी 4 year बैचलर्स होना चाहिए, 144 क्रेडिट्स का एक डिग्री प्रोग्राम होता है, कभी कभार ये क्रेडिट्स कम भी होते हैं फॉर बिजनेस डिग्रीज जो ऑनर्स में ऑफर होती है, बट अगर वो ऑनर्स डिग्री पाकिस्तान से की हुई है तब भी वो एलिजिबल है कि अगर उसने 3 साल का ऑनर्स भी किया हुआ है तो वो बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज में इजीली एक्सेप्टेबल है। सही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऐड किया कि समटाइम्स हमारे पास जो थोड़ी सी 10 साल पीछे चले जाएं, जो डिग्रीज आती थी वो ऑनर्स वाली भी कराते थे, अब तो खैर सारी 4 years हो गई हैं, लेकिन ऑनर्स 3 years भी अगर कोई करके बैठा है तो वो भी अपने एप्लीकेशन को, अगर उसके एक्सपीरियंसेस हैं तो वो लगा के सारी चीजें बना के वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। बहरहाल 4 years इज इम्पोर्टेंट, 4 years बैचलर्स इन ऑर्डर टू गेट इनटू द फर्स्ट ईयर, इन ऑर्डर टू गेट इनटू द मास्टर्स प्रोग्राम डायरेक्टली, 4 years इज इम्पोर्टेंट। रही बात BA और BCom स्टूडेंट क्या करेगा, BA स्टूडेंट another very alarming अगर उसका बहुत ज्यादा गैप आ गया है साल से ज्यादा का,
तो अगेन उसकी ऑफ कोर्स देखा जाएगा कि वो क्या रहा है मैट्रिक इंटर में। बीए वाले स्टूडेंट का जरा ट्रिकी होता है कि वो करना क्या चाहता है, अब उसने बीए क्यों ले लिया, वो कुछ और भी ले सकता था। तो बीए अक्सर वो लोग ले रहे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक डिग्री चाहिए होता है और उनकी अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक स्ट्रेंथ बहुत बिलो लेवल पर होती है, एंड यू अंडरस्टैंड दैट राइट। सो बीए अगर उसने ले भी लिया तो वो क्या चाहता है, क्या करना चाह रहा है, उसको सोशल साइंसेस पढ़नी है, फाइन, उसको लॉ पढ़नी है, गुड, सोशियोलॉजी करनी है, ओके, any program which is related to social sciences and humanities, अपनी डिग्री ले सकता है। बीए के बाद 3 साल का डिग्री वो करेगा। ट्रांसफर्स, वेवर्स, एग्जाम्पशंस उस बीए वाले के लिए कहीं नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट डिग्री में कर सकता है, बीए के बाद एलएलबी 3 साल का कर सकता है, बीए के बाद पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस कर सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स कर सकता है, इस तरह के वो कोर्सेज ले सकता है बीए वाला। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। रही बात बीकॉम स्टूडेंट्स का कुछ यूं है कि अगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बीकॉम स्टूडेंट्स को अपने ईयर 2 में दे देती हैं इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज। एग्जैक्टली टाइटल आपको और भी मिल जाएंगे साइट से, स्टूडेंट्स को हम बता भी देंगे अगर उनकी क्वेरी आ रही है हमारी नजरों में। तो बीकॉम ईयर 2 एंट्री के लिए पॉसिबली इन सम यूनिवर्सिटीज वो कर सकता है। समटाइम्स बीकॉम स्टूडेंट विद 60% मार्क्स और क्लोज टू 60% मार्क्स, उसके पास अगर साथ में 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है या 6 महीने का भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसको हम कुछ ऐसी चॉइसेस भी हैं यूके में कि जो उसको प्री मास्टर्स 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर्स कुछ इस तरह का प्री मास्टर्स लीडिंग टू 1 ईयर मास्टर्स बीकॉम स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। तो इट रियली डिपेंड्स अगेन अपॉन इंडिविजुअल्स क्वेरीज पे डिपेंड करता है कि उसका बीकॉम की स्टैंडर्ड क्या आ रही है, 2 ईयर का उसने किस पोजीशन में किया है। तो उसके पास हमारे पास ईयर 2 का अरेंजमेंट भी मौजूद है बैचलर्स में, उसके लिए हमारे पास प्री मास्टर का अरेंजमेंट भी मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मास्टर प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर एक स्टूडेंट मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद पीएचडी के लिए क्या जो है वो क्राइटेरिया, इन दोनों को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए कि मास्टर और पीएचडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेट्स से एक बच्चा है बैचलर के बाद मास्टर्स के लिए जा रहा है, तो वो क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, कितने साल का मास्टर प्रोग्राम होता है यूके में, 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम है, 2 ईयर का मास्टर प्रोग्राम है, कितने ईयर्स का मास्टर प्रोग्राम्स होता है यूके में, इसको कीजिएगा, थोड़ा गाइड कीजिएगा। देखिए स्टैंडर्ड ड्यूरेशन जो मास्टर्स डिग्री का है यूके में वो 1 ईयर है, स्टैंडर्ड इज 1 ईयर। ठीक है, फ्यू कोर्सेज आर देयर जो 1.5 साल के भी होते हैं, लेकिन 1 ईयर इज स्टैंडर्ड। बिसाइड्स दैट अगर वही स्टूडेंट अच्छा हाँ मैं आपको एक चीज ऐड करूँ, हमने 2 ईयर के मास्टर की बात चूंकि की है, तो 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम जो है वो तब बन जाता है जब यूनिवर्सिटीज की तरफ से कोई वर्क प्लेसमेंट हो, यानी 1 ईयर वर्क प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया। बहुत सी यूनिवर्सिटी 6 महीने का या 1 साल का जॉब प्लेसमेंट ऑफर करती है, वो ऑप्शनल होता है, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है। बट एज फार एज द एक्चुअल जो ओरिजिनल उनका डिग्री ड्यूरेशन है वो 1 साल ही है। 1 साल के बाद यूजुअली स्टूडेंट कहता है कि मुझे पीएचडी करना है, आई वांट टू परस्यू अ पीएचडी, 3 साल का पीएचडी। तो मास्टर्स के बाद वो 3 साल का पीएचडी अप्लाई तो कर सकता है, बट अगेन पीएचडी की एंट्री क्राइटेरिया एक तफसीली डिस्कशन है, इज अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई वांट टू गिव। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पीएचडी की एंट्री क्राइटेरिया में सिर्फ ये बात शामिल नहीं है कि वो यूके का मास्टर्स हो तो हम पीएचडी में दाखिला देंगे, उसको उसकी रिसर्च लैकिंग्स नहीं होने चाहिए, उसको इसका रिसर्च प्रपोजल स्ट्रांग हो, अगर उसकी पब्लिकेशंस हैं, आर्टिकल्स उसने पब्लिश किए हुए हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटीज अपने मास्टर्स कराते वक्त स्टूडेंट को ये ट्यूटोरियल देती हैं कि उन्होंने रिसर्च कैसे करना है, उन्होंने आर्टिकल्स कैसे पब्लिश करने हैं, तो लिखने कैसे हैं, तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही थी। हर स्टूडेंट इस चीज़ को कवर नहीं कर पाता। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूके के मास्टर्स के बावजूद भी पीएचडी में स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन नहीं ले सकते। तो पीएचडी दाखिला लेना एक बिल्कुल स्ट्रेट एप्लीकेशन नहीं कि जी आपने सारे डॉक्यूमेंट लगाए, अपलोड किए, सबमिट किए, एचआर को दे दिए, आपका ऑफर आ गया, जी ऐसा नहीं है। पीएचडी
में आपको साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन हम कर रहे होते हैं और स्टूडेंट को अप्रूवल करना होता है, साइमल्टेनियसली भी हो रहा होता है। समटाइम्स पहले अप्रूवल चाहिए होता है, फिर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है पीएचडी एप्लीकेशन। तो पीएचडी जो है उसके लिए आपका रिसर्च ओरिएंटेड होना, आपका पास रिसर्च एरिया क्लियर हो, आपके सुपरवाइजर्स यूनिवर्सिटी में अवेलेबल, आपको प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा हो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज स्टूडेंट को फिर मास्टर्स बाय रिसर्च लेना पड़ सकता है। एक अलग से कोर्स है मास्टर्स बाय रिसर्च, जो एक्चुअली डिजाइन ही उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए किया गया है कि जिन्होंने पीएचडी परसू करनी है और वो अपनी रिसर्च उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई even after getting a master's degree from UK, unko still they have some lackings in research and doing research, or they're so far they're unable to publish their क्या कहते हैं the articles. So if supervisor is not happy to accept a student as a PhD student, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो उसके लिए फिर मास्टर्स बाय रिसर्च डिजाइन है यूनिवर्सिटीज में, उसको चाहिए कि वो मास्टर्स बाय रिसर्च परसू करे, उसके लिए किसी किस्म की रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और वो बाय रिसर्च करने के बाद वो ऑलमोस्ट रेडी स्टूडेंट होता है, इज अ परफेक्ट स्टूडेंट टू परसू पीएचडी इन हिज फ्यूचर। ठीक हो गया। अच्छा, अब दो चीजें मैं एक साथ पूछूंगा आपसे। फर्स्ट, स्कॉलरशिप्स कितनी प्रोवाइड की जा रही है यूके यूनिवर्सिटीज, क्या प्रोवाइड करती हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में? ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है। हमारी बहुत सी क्यूरीज जो है इस बात को कंफर्म करती हैं कि स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइए। तो आप बताइए स्टूडेंट्स को कि स्कॉलरशिप्स कितने % तक मिलती है और सेकंड इनटेक कौन सी आ रही है, नेक्स्ट इनटेक कौन सी है, ये दो चीजें क्लियर कीजिएगा। देखिए ताहिर, यूके यूनिवर्सिटीज आर द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हम कह सकते हैं, या वो काफ़ी जनरस होती हैं इन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स। हर दूसरी यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप्स दे रही होती है। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, समटाइम्स दे हैव लॉट्स ऑफ many different scholarships. Of course scholarships guaranteed नहीं होती, based on academic, ज़्यादातर scholarships merit based होती हैं। रीजनल scholarships तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के पास होती है, 10%, 20%, 30%, it varies university to university उनके budgets पे। £1,000 to £2,000, £3,000 up to £6,000 तक की scholarships हैं। Sometimes numbers limited होते हैं, किसी particular program के लिए होते हैं। £6,000 अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्रूनेल यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट 110 स्टूडेंट्स या 150 स्टूडेंट्स के लिए वो दे रहे हैं £6,000 स्कॉलरशिप। ऑफ कोर्स कंपैटिबल है और उसके लिए डेडलाइंस हैं, तो स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता है डेडलाइंस। स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल, स्टूडेंट हैज टू बी ऑन टाइम। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स need the offer letter first. First student has to book the offer letter. ऑफर नहीं है तो वो डेडलाइन निकल जाएगी। हम अपने स्टूडेंट्स को इन हालात में भी क्यों एनकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द सबमिट कराएं, इसलिए कि वो एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे उनकी ऑफर, बिकॉज COVID-19 situation, working from home, universities are also working from home, we are getting offers, students are receiving the admissions, and the students who are getting offers on time are able to apply for the scholarships before the deadline comes. So scholarships deadlines usually April में आती हैं, March वाली भी आके चली गई, but वो extend हो गई because of this COVID-19 situation. So scholarships जो है हर यूनिवर्सिटी की different है, और जो regional है वो तो automatic है, मतलब मिल गए, जैसे आपने अप्लाई किया, you're meeting the criteria, £1,000 है, £2,000 है, those are available straight. There are many universities, University of Bedfordshire है, Ulster है, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर है, इनकी कुछ की डेडलाइन है, बाकियों को ऑटोमेटिक है, ऑफर आया, स्कॉलरशिप आया, अगर आपकी ग्रेड्स मीट हो रहे हैं। तो बहरहाल ऑफर आपको टाइमली स्टूडेंट को चाहिए कि वो इंतजार नहीं कर रहा हो कि देखेंगे सिचुएशन कब सही होती, बिकॉज जैसे ही हम इंशाल्लाह इस सिचुएशन से बाहर आते हैं COVID-19 की, देयर विल बी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस। एनकरेज माय स्टूडेंट्स जिन्होंने सोचा हुआ भी है कि हमें सितंबर 2020 में बाहर पढ़ने जाना है, मास्टर्स या बैचलर्स परसू करना है, they should grab the offer regardless session starts in September, October or later, but they should grab the position offer, right, so they can get the scholarships. जी ठीक हो गया।
कमिंग इनटेक का भी बता दिया कि सितंबर इनटेक आ रही है, कमिंग जो इनटेक है वो सितंबर आ रही है इनटेक, जो कमिंग यूके के लिए आ रही है। एक चीज जी जी जी। सेकेंडली मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का सवाल है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हुए हुए हैं कि जो जाना चाह रहे हैं यूके में स्टडी के लिए, इंटरेस्ट है जिनका फर्दर स्टडीज के लिए, वो ये चीज कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या अभी क्लासेस ओपन हैं फर्स्ट, और क्या एडमिशंस हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज एडमिशंस दे रही हैं, यूके की यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो इस चीज पे थोड़ी रोशनी डालिए कि क्या अभी क्लासेस ओपन है, यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन दे रही है या नहीं दे रही है। फर्स्ट इस चीज पे भी रोशनी थोड़ा डालिए, इनटेक और ये दो सवाल है मेरे आपसे। ओके पहला सवाल आपका था इनटेक से रिलेटेड। देखिए जो यस इनटेक जो है, जो अभी एडमिशंस आ रहे हैं, दैट इज फॉर सितंबर अक्टूबर 2020। ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने सेशन को सितंबर से अक्टूबर कर दिया है। इन केस अगर सितंबर में रन नहीं भी होता है तो कोई हार्म नहीं है इसमें कि आप ऑफर आ गई क्या होगा, ये तो बहुत अजीब हो गया, गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलैक्स, आपका सितंबर इनटेक है, जस्ट फोकस ऑन सितंबर अक्टूबर। अपनी सारी प्रेपरेशन, एडमिशन, आईएलटीएस की जो क्राइटेरियाज हैं उसका भी ऑल्टरनेट मौजूद है, आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आती है उसका भी जो भी प्रोसीजर्स हैं, बहरहाल उसके लिए यू शुड बी रेडी। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नहीं भी रन होता तो वी हैव प्रॉब्ली वी एक्सपेक्ट यूनिवर्सिटीज कि वो जनवरी में चला जाए या उसके सेंटर में कोई सेशन, यानी जैसे सिचुएशन बेहतर होती है यूनिवर्सिटीज विल डेफिनेटली बी स्टार्टिंग दिस सेशन। तो ऑफर आप जरूर ग्रैब करें फॉर द अपकमिंग सेशंस। इनटेक सितंबर ही है जो अपकमिंग है, बट अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा सितंबर इनटेक रन, तो आपका ये एडमिशन एज इट इज डेफर हो रहा है, यूनिवर्सिटीज आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस देंगी कि देखिए जी आपकी न्यू डेट्स ये हैं। और ये एक ग्लोबल क्राइसिस में हम हैं, तो हमारी सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सिचुएशन के साथ कूप अप हमने खुद करना है, हमने, एप्लीकेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने, अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑफर ग्रैब करें, ताकि आपका जब वो टाइम ओपन होगा, जब एक्चुअल एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन होगा, उस वक्त प्रोबेबली बहुत रश हो और बहुत डिलेज आ रहे हो। तो अभी जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो करें, सितंबर के लिए करें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था ताहिर? आई एम सो सॉरी। दोबारा कर लेता हूं कि वही मैंने यही था, एक इनटेक से रिलेटेड था, एक तो इनटेक से रिलेटेड मैंने किया था और इसमें भी आपने जिस तरह गाइड कर दिया। मेरा दूसरा सवाल यही था, इस पे आपने रोशनी डाली है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज का ऑफर कर सकते हैं, एडमिशंस करवा सकते हैं। और ये मेरा जी यस यस यस, एज आई सेड, मैंने वो क्लियर किया, मैंने दोनों को इसमें मर्ज किया है आंसर को। आई अपोलोजाइज कर दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब एक दो चीजें लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। सेकंड सवाल मेरा आपसे ये है कि एप्लीकेशन प्लेस करना चाह रहा है स्टूडेंट रिसेंटली कमिंग इन टेक के लिए, उसको क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो व्हाट्सएप करने हैं, या एचआर की टीम को हमें व्हाट्सएप करने, क्या डॉक्यूमेंट्स है फॉरेन से एप्लीकेशन प्लेस के लिए। लेट्स से स्टूडेंट के पास आईएलटीएस नहीं है, एक चीज इसको भी क्लियर कीजिए कि आईएलटीएस की क्या रिक्वायरमेंट्स है। स्टूडेंट्स ये भी बहुत से जानना चाहते हैं कि आईएलटीएस की क्या रिक्वायरमेंट है, फाउंडेशन इंटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आईएलटीएस की, बैचलर और मास्टर्स के लिए कितना आईएलटीएस रिक्वायर्ड होना चाहिए, और उसके बाद क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन प्लेस के लिए, जो कि आपको सेंड करें फॉरन से, ताकि आप उनका स्पॉट एडमिशंस प्लेस करें, ताकि वो आने वाले टाइम वेस्ट होने से बच सकें। इस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, बताइए। ताहिर, इस वक्त स्टूडेंट की एप्लीकेशन जो वो हमें दे, ऑफ कोर्स, तो उसके पास अगर आइल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी ये रेफरेंस लेटर्स नहीं है, वो चीज़ है जिसके लिए उसको घर से बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो नहीं है, तो वो हमें एकदम से उसकी नीड नहीं, वी नीड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। वो एटलीस्ट हमें अपनी सीवी दे सकता है with full biodata, all the experiences, जो भी available documents है वो दे। अगर कोई ऐसा document है जो लाजिम है बट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, और वो उसकी ड्यू है, क्लियर वो कर चुका है, तो वो फिलहाल हमें ऑनलाइन रिजल्ट्स भी दे सकता है, या वो हमें एलाबरेट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि दिस इज द रीजन एंड बाय दिस टाइम आई विल बी एबल टू अरेंज माय फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। रही बात रेफरेंस लेटर्स की कि वो कैसे देगा, बिकॉज यूनिवर्सिटीज तो बंद हैं, तो वो रेफरेंसेस के लिए अपनी इंस्टीट्यूशन जो जहाँ से उसने लास्ट एजुकेशन हासिल किया है, तो वो अपना वहाँ से
रेफरीज की डिटेल्स ले ले, नेम ले ले, ईमेल एड्रेसेस ले ले, उनकी पोजीशन, उनकी पोस्ट, उनकी क्या था वो ले ले। और आजकल ये भी हम देख रहे हैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज, बिकॉज यूनिवर्सिटीज भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज भी घर से काम कर रहे हैं डेफिनेटली फैकल्टी, राइट, तो दे कैन कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट हिज जो रेफरी है और वो ईमेल पे ले सकता है, तो दोज आर एक्सेप्टेबल इन दैट वे। रही बात आइल्स की, ऑफ कोर्स आइल्स नहीं हो रहा है अभी, बट काफी ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, टोफल आईबीटी ऑनलाइन हो रहा है, डुओलिंगो टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है, तो वो हमें फौरी रब्ता करें, हम उसको अरेंज करके देते हैं ऑनलाइन जहां पर हो रहा है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज की अपनी इंटरनल असेसमेंट्स भी होंगी, हो रही हैं। अगर आइल्स के लिए वो मिस हो गया, अगर सारी सिचुएशन बहाल हो गई और आइल्स की डेटें भी मुश्किल हो जाएंगी, सारी डेट से तारीखें मिलना डिफिकल्ट हो सकता है, हो जाए, तो वो उसके लिए फिर यूनिवर्सिटीज के इंटरनल असेसमेंट भी हो रहे होंगे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स, जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे, हम उसका एडमिशन कंडीशनल ऑफर अरेंज करके उसको दे रहे हैं। अब रही बात आपका दूसरा क्वेश्चन था पार्ट की, उसकी क्राइटेरिया हमने डिस्कस ही नहीं किया आइल्स की रिक्वायरमेंट्स का, तो वो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल वही मैं पूछ रहा था आपसे, क्या एंट्री और फाउंडेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? मैं पहले मास्टर्स का, बैचलर का, फिर एंड में फाउंडेशन का बता दूंगी, आप बता रही हूँ आपको, ठीक है। मास्टर्स के लिए जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो है 6.5 विद 6 in each, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सारों में 6, ओवरऑल 6.5, ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। कब समटाइम्स ये रिक्वायरमेंट कोर्स टू कोर्स बदल जाती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल का कोर्स है, साइंस डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कोई कोर्स है, मेडिकल से रिलेटेड कोर्स है, उसकी 7 भी डिमांड हो जाती है समटाइम्स, इट रियली डिपेंड्स। 6.5 and 6 is a standard, again I'll say। बिजनेस के कोर्स भी समटाइम्स 7 बैंड्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जो ट्रिपल क्राउन अक्रेडिटेड बिजनेस स्कूल्स उनमें 7 की डिमांड भेज जाती है, लीड्स है वगैरह, तो 6.5 स्टिल स्टैंडर्ड है, बट वो कोर्स टू कोर्स वेरी समटाइम्स करता है। लॉ के कोर्सेज में 7 बैंड की डिमांड आ जाती है, तो ये फिर वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उनके कोर्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिक्वायरमेंट चेंज। बट पोस्ट ग्रेड में जो कि स्टैंडर्ड सबको अंडरस्टैंडिंग है वो है 6.5, 6.5, 6 इन ईच। दूसरी लेवल पर समटाइम्स इन सम यूनिवर्सिटीज 6.0 भी एक्सेप्टेबल है पोस्ट ग्रेड में। देयर मेनी यूनिवर्सिटीज जो 6 स्कोर पे ओवरऑल अपने सारे पोस्ट ग्रेड में, दे आर हैप्पी टू एक्सेप्ट स्टूडेंट्स with overall 6 with 5.5 in each, ठीक है। सेम लाइकवाइज अंडरग्रेड का भी इसी तरह से ही है, 6.5 6.0 overall with 5.5 in each, and for some of the programs where there is more usage of English, 6.5 is needed, ठीक है। So again it really varies, but standard अगर समझना है तो it's 6.5, 6 in each for PG, 6 with 5.5 in each under। अब आ गई बात फाउंडेशंस की, फाउंडेशन प्रोग्राम्स, तरह के फाउंडेशन कोर्सेज आ रहे हैं। बहरहाल आइल्स का एक पहले ऐड करूं कि आइल्स जो स्टूडेंट्स हमारे कर रहे थे, we advise them to sit for the UKVI academic IELTS, ठीक है। तो फाउंडेशन प्रोग्राम्स जो लेवल 3 के फॉर फाउंडेशन कोर्सेज हैं, उनके लिए 5.0 भी एक्सेप्टेबल है विद 4.5 इन ईच, 5.5 भी एक्सेप्टेबल है, मतलब 5.5 इज द स्टैंडर्ड विद 5 इन ईच, और कहीं पर उसको 5 ओवरऑल और 4.5 पे भी हो जाता है लेवल 3 फाउंडेशन। IELTS UKVI इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। वैसे तो हम सभी को एडवाइस करते हैं कि UKVI करे, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर स्कोर की डिक्रीज हो गया, स्कोर लेस आ गया, जो रिक्वायरमेंट से नीचे आ गया, तो स्टूडेंट को इंग्लिश का सेशन लेना है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो UKVI उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड पे जा रहा है, बैचलर, मास्टर, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी लेवल पे जा रहा है। रही बात फाउंडेशन प्रोग्राम एंट्रेंस की, अगर वो 1 साल के फाउंडेशन कोर्सेज में जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टैंड अलोन 1-1 साल के फाउंडेशन ही देती हैं, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो कि ग्रुप्स के थ्रू भी हेल्प कर रही हैं, और अपना खुद का, जैसे क्वीन मैरी का इंटीग्रेटेड है, और ग्रुप्स में नेविटस, OIEG, ये जॉइंट एडमिशन देते हैं फाउंडेशन, तो उनके लिए नॉन UKVI अगर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट मीट हुई है, सो 5.5 विद 5.5 in each, अगर नॉन UKVI भी है
तो वो जॉइंट एडमिशन के लिए वर्क करेगा। तो बहरहाल इट्स लर्नर्स डिबेट, अगर आपके पास क्वेरी है तो मैं उसको भी एलैबोरेट कर। Yeah. So, and for the foundation programs, अगर standalone बचा आ रहा है 5 भी acceptable है with 4.5 for थोड़ा सा बेहतर यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन है, बर्मिंगम का, क्वीन मैरी का 5.5 with 5 in each, और 6 ओवरऑल भी रिक्वायर्ड होता है कभी फाउंडेशन के लिए, तो वो डिपेंड कर रहा होता है। ग्रुप में थोड़ी सी लीनियंसी होती है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा जरा सा माइनर से स्ट्रिक्ट होता है क्राइटेरिया फाउंडेशन प्रोग्राम का। और एम्बेडेड हो अगर तो सारों में 5.5 लेकर आएगा। अगर फाउंडेशन और डिग्री मिक्स करके ऑफर हुई है, जॉइंट एडमिशन है, अलग से फाउंडेशन नहीं है, तो सारों में 5.5 लेकर आएगा स्टूडेंट। ओवरऑल भी वो 5.5 या अबव लेकर आएगा। ठीक हो गया मैम समा, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया और बहुत सी इंफॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। डेफिनेटली हमारे ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव जो ये आज का सेशन था, और बहुत इंशाल्लाह आगे भी हमारे जो है बहुत से सेशंस ऐसे होते रहेंगे। और जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, हमारे बहुत से ऐसे ही सेशन लाइव चलते रहेंगे, तो हम हमारे सेशंस को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेटिव जो है वो इंफॉर्मेशन है जो कि स्टूडेंट्स को रियली नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है इंफॉर्मेशन की, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके सवालात होते हैं, बहुत से ऐसे सवालात करना चाहते हैं, जैसे कि आज हमने यूके के बारे में डिस्कस किया। तो इसी तरीके से हमारे स्टेप बाय स्टेप सेशंस होते रहेंगे, हमारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के सेशंस हो रहे हैं, उनको जरूर सुनिए, देखिए अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड है। इसी तरीके से हमारा जनरल सेशंस हो रहे हैं, क्वेश्चनिंग आंसर्स हो रहे हैं, आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे सेशंस को। वंस अगेन थैंक यू सो मच मिस साइमा, आपने आज हमें ज्वाइन किया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आज आपके साथ हमारा, और आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर की। और इसके बाद जो है मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, फौरन से अगर आप मिस साइमा से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो 034647470026 पर अभी इनको अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिए। कराची ऑफिस में होती है मिस साइमा, अगर आप इंशाल्लाह जैसे ये वायरस खत्म होता है आप इनको ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अभी इनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, ताकि आपका आने वाला टाइम बच सके। जो आपका आगे आने वाला टाइम जो वेस्ट होगा वो अभी ये आपकी एप्लीकेशन प्लेस करेगी। हमारी पूरी एचआर की टीम पाकिस्तान से कहीं से भी है, जिसमें मिस साइमा और भी हमारे यूके की टीम है, वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर फैसिलिटेट करेगी, प्रॉपर आपको ऑन स्पॉट आपकी एप्लीकेशन प्लेस करेगी। अगर आपने अभी आइल्स नहीं किया फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऑन स्पॉट आपका एप्लीकेशन प्लेस किया जाएगा। फर्स्ट सेकंड मैं अपनी क्राउड को, अपने ऑडियंस को ये चीज डेफिनेटली मस्ट बताना चाहूंगा कि आपने एक चीज सुनी है, इसने बताया कि जो आने वाले यूके की यूनिवर्सिटीज हैं वो एडमिशंस दे रही हैं, क्लोज नहीं है एडमिशंस, अपना फॉरेन से एडमिशन करवाइए। इसमें एक चीज सेकंड में इसमें एक चीज को जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी अपना एडमिशन कराएंगे तो आगे जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगी, क्योंकि जैसे ही क्लासेस ओपन होंगी, जैसे ही वायरस के बाद, तो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी जिन्होंने फर्स्ट बिहाफ पे एडमिशन कराया होगा। ये इसमें ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, तो आप अभी अपना एडमिशन करवाइए, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक टू ऑनवर्ड्स, जिस टाइम साइमन ने बताया, आप इनको फॉरवर्ड करें, हमारी टीम को फॉरवर्ड करें। और यहाँ पे कराची के अलावा अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो 034647470043 पर अभी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, इंशाल्लाह आपको ऑन स्पॉट आपकी क्यूरी को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहूंगा अपने जो है स्टूडेंट्स को कि आइल्स की एचआर कंसल्टेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की हुई हैं। फौरन से अगर आप परेशान हैं आइल्स के लिए, अभी आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं या नहीं कर सके या करना चाह रहे हैं, तो एचआर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आपको बिल्कुल फ्री एक डेमो क्लास दी जाएगी, पहले आप सेटिस्फाई हो कि आप फर्दर आइल्स को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, आपको खुद से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपका एनालिसिस किया जाएगा आइल्स के लिए, देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने आइल्स के लिए, आपको एचआर कंसल्टेंट्स फी में भी बहुत जबरदस्त किस्म का डिस्काउंट देगा और आगे आपका आने वाला टाइम बच सकता है। तो अपने आगे आने वाले टाइम वेस्ट होने वाले को अभी बचाइए, आइल्स को फौरन से ज्वाइन कीजिए। एचआर कंसल्टेंट्स को 034647470005 हमारे आइल्स के कोऑर्डिनेटर है, ये आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे और इंशाल्लाह आपकी ऑनलाइन क्लास अरेंज करेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और थैंक यू मिस साइमा, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे सेशन होते रहेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
Thank you, ma'am.